effectively and efficiently. Yes? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Dr. Nidhi, ma'am. Thank you, Now ma'am. time is going to be over and we have Dr. Sarvagya Shukla sir at the platform to start the session. And we welcome Dr. Sarvagya Shukla sir at this platform. Dr. Sarvagya Shukla sir, you may start your session at 4 p.m. today. Thank you so much, ma'am. Thank you, learners. Thank you so much. Thank you. Thank you, मैम. निधि मैम आपका स्लाइड भेज दीजिए व्हाट्सएप पे. Sure, निधि sure, मैम sure. I will share. स्लाइड व्हाट्सएप पे भेजिए मैम प्लीज. Okay. मैम थोड़ा असाइनमेंट्स के बारे में कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैम बता दीजिएगा. Okay, okay, fine. स्लाइड जरूर शेयर कर दीजिएगा. Sure, sure. I will share. Don't worry. हाँ ओके. वैसे मैम ने बहुत अच्छा समझाया स्लाइड से. मैम Okay. थैंक यू. Thank you. असाइनमेंट्स कैसे Ma'am, should I leave now? मैम असाइनमेंट्स के बारे में थोड़ा जरूर बताइएगा मैम प्लीज. Okay, okay. कैसे बनाएंगे बस. ओके मैम. Sure, sure. थैंक यू मैम. Good afternoon, everybody. I'm Dr. Sarvagya Shukla. Very good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर. Good evening, sir. Giving so. Good evening, good afternoon. The slide is visible to all. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. So we have a class of accounting for managerial decision, unit 1, accounting and introduction. How many of you from commerce background? No, sir. Maximum or some learners are commerce background? Average, sir. No problem. So we're starting the accounting introduction chapter. We are starting the chapter. Over the countries, accounting has remained confined to the financial records keeping functions of accountant. What is accounting? What are the needs of accounting? Accounting is an art to record, classify, analyzing, summarizing, and interpreting the financial data or financial records of the company. In the ancient time, the number of transactions are limited. So we need not to have a proper accounting method. We only can record day-to-day transaction in a diary. Okay? And not much persons are involved in the commercial activities. So there is no proper or channelized accounting method. But as the civilization developed, the work of the accounting expand because the number of transaction has gone up. So over the countries, accounting has been remains confined to the financial record keeping functions of the content of the accountant. But today's rapidly changing business environment has forced the accountant to reassess their roles and functions both within the organization and the society. The role of an accountant has now shifted from that of a mere records of a transaction to that of the members providing relevant information to the decision-making team. Broadly speaking, accounting today is much more than just bookkeeping and the preparation of financial reports. So the work of the function of the accountant has been expanded due to the number of transactions has been expanded or number of transactions has been increased in business transactions. Accountants are capable of working in existing exciting new growth areas such as porcine accounting of the money of the interest, e-commerce, financial planning, environmental accounting, etc.
This realization came due to the fact that accounting is capable of providing the kinds of the information that manager and other interested person need in order to make better decisions. So the accounting records are not only give the information how much money we have, how much liabilities we have, how much of the value of the asset. In spite this, the accounting information gives a platform to the manager for the decision making purpose. This aspect of accounting gradually assumed so much importance that it has now been raised to the level of the information system. As an information system, it collects data and communicates the economic information about the organization to a wide variety of users. Those decisions and actions are related to its performance. Now we come to the evolution of accounting, how the accounting is developed. As per Indian methodology, Chitragupta is responsible for maintaining accounts in the God's code. Everybody know Chitragupta? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So Chitragupta is the first. Chitragupta known as the first accountant, which records our good habits and bad habits in the books of account and presented in the court of God. A book of Arthashastra written by Kautilya, who has a minister in Chandragupta's kingdom 23 centuries ago, mentioned about the accounting practice in India. It describes how accounting records have to be maintained. In China and in Egypt, accounting was used for maintaining revenue records of the government treasury. So these are the primary functions of the accounting and primary stage of accounting. We use the accounting information only for accounting purpose and not for decision making purpose. A book on arithmetic, geometry, proportionality review of arithmetic and geometric proportion by an Italian Luca Pacioli. So now the method of accounting known as double entry system. All the transaction, all the records of the books of account are recorded as per the double entry system. And double entry system introduced by Italian mathematician Lucas Pacioli. ठीक है, is considered the first authentic book on double entry bookkeeping. In this book, we use the present day popular term of accounting, that is debit and credit. We also discuss the detail of memorandum, journal, ledger, and specified accounting procedures. We also state that all entries have to be double entries. That is, if you make one creditor, you must have some debtor. Okay, so these are the revolution of accounting. The current accounting method is known as double entry system, which is propounded by Italian mathematician Lucas Pacioli in the year 1494. In the year 1494, Lucas Pacioli propounded the current accounting method known as double entry system. Okay. Accounting start with two terms, that is bookkeeping and accounting. What is the bookkeeping and what do you mean by accounting? Can anybody explain what is what do you mean by bookkeeping? What is bookkeeping? Bookkeeping means daily voucher posting like cash, bank, etc. And accounting means our profit and loss account, our balance sheet, trial balance. These are the accounting. ओके सर, किसी भी सर बिजनेस में कोई भी चीज को नोट डाउन करना, दैट इज बुक कीपिंग, और रेगुलर टाइम इंटरवल में उसकी अकाउंटिंग करना, दैट इज अकाउंटिंग। इज सिंपल में सर। हाँ, देखिए ऐसा ही, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। देखिए, जब हम एलिमेंट्री रिकॉर्डिंग करते हैं किसी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की, जब हम एलिमेंट्री रिकॉर्डिंग करते हैं, एलिमेंट्री मींस प्राइमरी रिकॉर्डिंग, जो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है, उससे हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग।
जिसमें क्या करते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शन को एक चार्कोलॉजिकल फॉर्म में लिखते हैं। चार्कोलॉजिकल फॉर्म मींस डे टू डे ट्रांजैक्शंस में उसको चार्कोलॉजिकल फॉर्म कहते हैं। जब हम अपने बुक्स जब अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन को चार्कोलॉजिकल फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। और अकाउंटिंग क्या होती है? व्हाट इज अकाउंटिंग? सर Calculation of how much टाइम टू income टाइम हम उस चीज को चेक करना है कि हम चीज सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं बेटा, ये बुक कीपिंग, ये अकाउंटिंग नहीं हुई, ये तो ऑडिटिंग हो गई। फिर हाँ ऑडिटिंग में तो हम जो है अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं, उनकी जस्टिफिकेशन, उसको जस्टिफाई करते हैं कि इसमें जो एंट्री हमने पास की है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो डिफरेंस क्या हुआ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में? सर जब इसमें डाटा को कलेक्ट करके, जैसे बुक कीपिंग से डाटा कलेक्ट करके उस पर कैलकुलेशंस करते हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं, या कम हुआ प्रोडक्ट ज्यादा हुआ प्रोडक्ट, ये अकाउंटिंग। प्रोडक्शन का बेटा बुक कीपिंग से कोई मतलब नहीं है ना, अकाउंटिंग से मतलब है। ठीक है, बुक जो ये आप बता रहे हैं ना, ये जो है ये मेथड होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग ये जो है डिक्लेरेशन करते हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। देखिए मैं डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में। बुक कीपिंग क्या है, क्लरिकल नेचर का वर्क है। ठीक है, अगर मैं आपको जर्नल के गोल्डन रूल्स बता दूं, जर्नल के गोल्डन रूल्स जानते हैं आप क्या होते हैं? व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल? बता सकता है कोई? व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये these are the known as golden rules of journal और golden rules of accounting। ठीक है, तो अगर आपको बेटा बेसिक फंडामेंटल रूल्स मालूम है और आपको ये मालूम है कि what are the kinds of accounts, which account consider in what type of accounts classified, तो ये जो होते हैं इनके लिए आप बुक कीपिंग आसानी से कर सकते हैं। आपको जनरल एंट्री पास करनी है, अगर आपसे मैं कह दूं कि गुड सोल्ड टू राम, तो उसकी आप क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? गुड सोल्ड टू राम, बता सकता है कोई? व्हाट जनरल एंट्री पास फॉर द ट्रांजैक्शन गुड सोल्ड टू राम? बता सकता है क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी? अगर गुड सोल्ड टू राम करते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे? नो सर। देखिए ये इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक दो अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट राम। हाँ, मतलब सेल्स अकाउंट जो है क्रेडिट होगा और राम डेबिट होंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल एंट्री है जिसको आप समझ गए केवल गोल्डन रूल ऑफ जर्नल से। और अभी मैंने क्योंकि बेटा इसमें बताया नहीं आपको कि नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, और आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं नहीं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगी नहीं एंट्री। मैं केवल एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ ये। तो अगर मैं आपको बता दूं कि राम एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या लगेगा वो आपको मालूम होना चाहिए। और सेल्स क्या है, सेल्स हमारी नॉमिनल है क्योंकि हमारी नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर की जाएगी क्योंकि हमारी पार्ट ऑफ इनकम है, इसलिए यहाँ पर इस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। तो आप एक प्रॉपर एंट्री पास कर सकते हो। लेकिन मैं अगर आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं, उसमें लिखा हो सेल्स इतनी है, परचेज इतना है, सैलरी इतनी पे की, वेजेस इतना पे किया, रेंट इतना पे किया, कमीशन इतना रिसीव हुआ, वगैरह वगैरह, इतनी डिटेल हमको दी गई हो, तो क्या आप उससे कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं अपने प्रॉफिट लॉस का? वो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए। तो जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग एक क्लरिकल नेचर का जॉब है, और जो अकाउंटिंग है वो सुपीरियर नेचर का जॉब है, क्योंकि यहाँ पर हमको बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के साथ साथ नेचर एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बुक कीपिंग जो है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है जिसमें कि हम अपने डे टू डे ट्रांजैक्शंस को चार्कोलॉजिकल फॉर्म में, डे टू डे फॉर्म में, या जैसे जैसे वो होते हैं उस फॉर्म में हम उसको कंसीडर करते हैं। अब आगे देखिए, सी मैं बता रहा हूं आपको। एवरी डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में बी अराउंड 100 and 1000. Can a businessman remember all these transactions in every respects? It is not possible. ठीक है, if number of transactions are in 1000 or hundreds, we cannot remember all the transactions. ठीक है, whom the parties.
So it becomes necessary to record these transactions in details and in systematic manner. Recording of business transaction in a systematic manner in the books of account called bookkeeping. It is most important part of this segment. Recording of business transaction is in a systematic manner in the books of account is known as bookkeeping. Okay, किसी को confusion इसमें? No, sir. What is bookkeeping? No, sir. Bookkeeping is a systematic manner to record business transaction or event in the books of account in charcoalogical form. Okay, bookkeeping is concerned with accounting, recording of financial data. This may be defined as art of keeping a permanent record of business transaction is bookkeeping. From books of accounts, important details such as total sale, total purchase, total cash receipt, total payment, etc. may be ascertained. As you know, the main objective of the business is to earn profit. In order to ascertain the profit earned during a period, mere recording of business transaction is not enough. Accounting involves not only bookkeeping but also may other activities. In 1941, the American Institute of Certified Public Accountant defined accounting as the art of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the business transactions systematically and communicating business result to the interested user in the accounting. And who are the interested users? The stakeholder related to the business are the interested users. ठीक है? So what is accounting? Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the business transactions systematically and communicating business result to interested users in the accounting. Accounting is defined with a system of recording of business transactions that creates economic information about business enterprises to facilitate decision making. The function of accounting is to provide quantitative information, primary financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. So what is the accounting? Accounting is an art of recording, classifying, analyzing, summarizing, and interpreting the business data to the interested parties. Okay. And second definition is the American Accounting Association defined accounting as it is a process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information related to the economic event of an organization to the interested users. Interested users are stakeholders of such information. In order to appropriate the nature of accounting, it is necessary to understand the following relevant aspects of defining of accounting. So, what is accounting? Accounting involves these aspects. First one is economic events. अब देखिए इसमें आपको ये बताया गया कि जो बुक कीपिंग क्या है. बुक कीपिंग तो केवल उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर पे. और अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम? अकाउंटिंग में क्या करते हैं? ना सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं. उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम अपने इंटरेस्टेड पार्टीज के बीच में सर्कुलेट करते हैं. उनको बताते हैं कि क्या हमारा जो है वो रिजल्ट आया है. रिजल्ट मीन्स how much profit we earn or how much loss we suffer during the financial year. Okay, but अकाउंटिंग में बेटा और क्या क्या चीजें आती है? अकाउंटिंग में केवल ये चीजें नहीं कि हमने उसको एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया. कौन सी चीजें एनालाइज करनी है, कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. नॉट एवरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ओनली इकोनॉमिक इवेंट्स और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. It is the occurring of the consequence to the business organization which consist of transactions that are measurable in monetary term. So only those transactions which can be
in form of money or money's worth can be recorded in the books of account. ठीक है? Non-monetary terms or non-monetary transaction could not be recorded in the books of account. Purchase of machinery, installing and keeping it's ready for manufacturing is an economic event which consists of number of financial transactions. These transactions are buying the machinery, transporting the same, preparing the site for the installation and incurring expenditure on the installing the same. तो ये बेटा हमारे वो इवेंट्स हैं जिनको या तो बेटा हम मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. केवल उन्हीं इकोनॉमिक इवेंट को ही हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे. सारे इवेंट्स या सारे ट्रांजैक्शंस जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं जिनको मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते या मॉनेटरी टर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं करेंगे. पहली चीज तो आपने समझी. सेकंड क्या होता है देखिए, तो पहले हमने क्या किया, इकोनॉमिक इवेंट को देखा कि क्या वो इवेंट इकोनॉमिक है या नहीं. अगर इकोनॉमिक इवेंट है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करेंगे. नेक्स्ट क्या है बेटा, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन. ये अगली प्रोसेस में आएगा. Identify implies determining what transactions are to be recorded. That is, items of financial characters are to be recorded only. For example, goods purchased for cash or credit will be recorded. Items of non-financial characters such as changes in managerial policies etc. are not recorded in the books of account. ठीक है, तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता या मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं हो सकता, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एंटर नहीं करेंगे. मेजरमेंट मींस क्वालिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट. इफ एन इवेंट कैन नॉट बी qualified in monetary term, it is not considered fit for recording in the books of firm. That is why important item like appointment, signing of contracts etc. are not shown in the books of account. इससे में किसी कोई डाउट मुझसे है तो पहले मुझसे पूछ लीजिए. दोनों इवेंट जो आपको ट्रांजैक्शंस मैंने बताए अभी, ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए आपको मैंने अकाउंटिंग के, इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझसे कंसर्न कर सकते हैं. भी आप लोग इसमें किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे कंसर्न कर सकते हैं पहले, फिर इसके आगे मैं बताऊं. फिर ये सर ये बुक वाला और जो अकाउंटिंग है दोनों में एनालिसिस तो करेंगे ही ना हम लोग, जैसे कि करेंगे. देखिए यही मैं बता रहा हूं कि हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करेंगे. देखिए एक बात और समझ लीजिए, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग अकाउंटिंग से अलग नहीं है, बस उसका एक प्राइमरी फंक्शन है. अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन उसे बुक कीपिंग कहते हैं. तो बेटा हम केवल वही ट्रांजैक्शंस, वही इवेंट्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करेंगे जो कि मॉनेटरी टर्म में हो. पहले तो ये देखेंगे मॉनेटरी टर्म में है नहीं. अगर मॉनेटरी टर्म में है तो उसको बेटा हम जो है फिर रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसको हम जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करेंगे रिकॉर्ड, चाहे वो कितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का हो. एग्जांपल मैं आपको देता हूं. देखिए मान लीजिए आपकी जो कंपनी है उसमें बहुत लॉयल, बहुत डिसेंट, बहुत ऑनेस्ट पर्संस काम करते हैं, तो क्या उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में आप एंटर कर सकते हो? यस सर कर सकते. कैसे कर सकते हैं आप? किसी की लॉयल्टी को, किसी की ऑनेस्टी को, कैसे करेंगे? किसी की ऑनेस्टी को आप कैसे मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते सर. हाँ तो देखिए नहीं, वो अगर हमारा लॉयल हो तो, अगर कंफर्म हो कि लॉयल है वो लोग, मनी नहीं आ तो रहा. लॉयल तो है लेकिन कितने लॉयल हैं? तो मॉनेटरी टर्म में तो आप मॉनेटरी टर्म में कंसीडर नहीं कर सकते. वही तो मैं बता रहा हूँ आपको. कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चाहे जितना भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगर उसको बेटा मॉनेटरी टर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते तब उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं कर सकते. देखिए जो हमारे पर्सन, ये जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो लॉयल है हमारे लिए, वो ऑनेस्ट है हमारे लिए, लेकिन उनकी लॉयल्टी को और उनकी ऑनेस्टी को हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसलिए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं कर सकते, भले ही वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. ओके, तो ये पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा इवेंट ऐसा है जो मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट हो सकता है. अगर मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं करेंगे. हो सकता है और हमारे बिजनेस के इंपॉर्टेंस का है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर किया जाएगा. आप किसी और का कोई डाउट तो मुझसे पूछ सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं फिर इसके बेटा हम लोग को. अब देखिए इसके बाद यह है रिकॉर्डिंग. Having identified and measured the economic event in the financial term, these are records in the books of account in monetary terms date wise. The recording of the business transactions is done in such a manner that necessary financial information is summarized according to well established accounting practices.
ठीक है, तो जो बेटा हमारे प्रैक्टिसेस अकाउंटिंग की हमको बताई गई हैं, या जो लॉज हमारे ऊपर इन्फोर्स किए जाते हैं गवर्नमेंट की ओर से, किस मेथड में या किस पर्पस में अपने बुक्स में अपनी कौन कौन सी एंट्री को हमें मेंटेन करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी बुक्स में हम एंट्री को मेंटेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है कम्युनिकेशन। The economic events are identified, measured, and recorded in such a manner that necessary relevant information is generated and communicated in a certain form to management and other internal and external users of the information. The financial information is regularly communicated through accounting reports. अब देखिए, जब हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया, इसको हमने एनालाइज किया, समराइज किया, और जो बड़ा रिजल्ट आया उसको हमने कम्युनिकेट किया किसको, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फॉर्म जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं हमारे, हु आर द इंटरनल स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, जिनको बेटा कंपनी से डायरेक्टली कोई बेनिफिट मिल रहा होगा, जैसे हमारे एम्प्लॉय, जैसे हमारे इन्वेस्टर्स, जैसे हमारे शेयर होल्डर्स, दीज आर द इंटरनल स्टेक होल्डर्स। अब भाई एम्प्लॉय को क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन, अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करें तो एम्प्लॉय के लिए क्यों, इसका उसकी क्या रिलेवेंस है? हाँ, अब देखिए वो देखना चाहेगा एम्प्लॉय की, अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितने बेनिफिट में है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी क्या मिल रही है, उसको अलाउंसेस क्या मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वो जानना चाहेगा, उसके लिए अकाउंटिंग बुक्स वो देख सकता है। शेयर होल्डर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि सर अगर वो पैसा लगा रहा है पैसा लगा रहा या है उसका तो शेयर है प्रॉपर कंपनी रिटर्न में, मिल रहा है या कि नहीं मिल रहा उसका है, शेयर है कंपनी हाँ, में, ये तो उसे चेक प्रॉफिट करेगा। हो रहा है कि तो ये हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर हुए। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आप पे टैक्स इंपोज करेगी फर्म पे, तो वो देखना चाहेगी कितना प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया। ठीक है, जो सप्लायर्स हैं वो देखना चाहेंगे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी सप्लाई डिसाइड करेंगे। तो ये हमारा कम्युनिकेट करता है इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को किसी फर्म की जो है वो इकोनॉमिक साउंडनेस के बारे में। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, रिफर टू बिजनेस एंटरप्राइज वेयर फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मोटिव। अब देखिए, दो तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी होती है, एक प्रॉफिट मोटिव पे होती है, एक नॉन प्रॉफिट मोटिव पे होती है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का बिजनेस है और उसमें हमें कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अलग होती हैं। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? जैसे स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स, दीज आर दी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनके अकाउंट्स अलग मेथड में बनते हैं, और जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अकाउंट अलग मेथड से बनते हैं। Interested users of information. Many users need financial information to make important decisions. These can be investors, creditors, labor unions, trade association, etc. तो ये बेटा हमारे अकाउंटिंग की के जो हैं ये कंसेप्ट्स हैं, जिस अकाउंटिंग में इन चीजों को हम इन्वॉल्व करते हैं, इसके बेस पे हमारी अकाउंटिंग होती है। इसमें किसी को कोई डाउट? हम लोग आगे पढ़ें फिर। यस सर, प्रोसीड करिए आप आगे। अब देखिए, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं चार्ट, ये है अकाउंटिंग प्रोसेस। जो अभी आपको मैंने बताया है इसको हमने समराइज वे में समझाया है यहाँ पे। अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी समराइज एज, सबसे पहले देखिए क्या क्या करेंगे इसमें, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन फर्स्ट, आइदर इट इज फाइनेंशियल और नॉट। इफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, then we can record the book the transaction in the books of account. If the transaction is not an financial transaction, that we cannot record the transaction in the books of account. So next देखिए इसके बाद क्या होगा, recording book original entry. This means this transaction is recorded in the books of journal. Next, classifying, then preparing a financial statement and communicating the result to the different users related to business. Okay, so this is the summarized chart of accounting process. Now comes to the difference between bookkeeping and accounting. बहुत important topic है ये। सबसे पहले देखिए इसमें जैसे basis of difference,
बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सबसे पहले देखिए स्कोप, रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इन बुक कीपिंग वी रिकॉर्ड्स एंड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली। Accounting is not only recording and maintaining of books of accounts, but also includes analysis, interpreting, and communicating the information. Next one is stage. Bookkeeping is a primary stage. Accounting is a secondary stage. Next one is objective. To maintain systematic records of business transactions. In bookkeeping, we maintain systematic records of business transactions. In accounting, we ascertain the net result of the business, how much profit earned by the business in a financial year, or how much loss suffered by the business in financial year. We ascertain this result by accounting. Next, nature. Often routine and clerical in nature. We have to done bookkeeping work throughout the year, and it is a clerical nature job. Accounting is analytical and executive in nature. Accounting का जो वर्क होता है बेटा ये एंड ऑफ द ईयर किया जाता है, ठीक है। जब आपके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएंगे, सारी एंट्रीज पोस्ट हो जाएंगी, तभी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर पाएंगे। मतलब अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शंस उनको या अकाउंटिंग की जो प्रोसीजर उसको आप कर पाएंगे। बुक कीपिंग goes throughout the year, but accounting at the end of the year. Responsibility. A bookkeeper is responsible for recording business transactions. An accountant is also responsible for the work of a bookkeeper. Why? Why is accountant responsible for the work of bookkeeper? बिकॉज सर हमारा ये जो अकाउंटिंग है सर हमारा वो एनुअल एनालिसिस हो गया, तो जब तक हमें डेली टू डेली हमें डे वाइज नहीं पता होगा तो हम एनुअल कैसे कर पाएंगे फिर। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा बुक कीपर का अकाउंटेंट जो है बेटा वो बुक कीपर के वर्क के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये कैसे हो सकता है भाई? अगर बुक कीपर भाई जो अकाउंटिंग जर्नल एंट्री कर रहा है उसके लिए अकाउंटेंट किस बेस पे रिस्पॉन्सिबल होता है? क्यों हो सकता है बताइए? Accounting is a managerial job, so the bookkeeper will be reporting to the अभी आपने accountant. यहाँ पढ़ा था, देखिए आपने क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो है क्लरिकल, बुक कीपिंग इज अ क्लरिकल नेचर जॉब, और ये जो अकाउंटिंग है सुपीरियर नेचर जॉब है। तो सुपीरियर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज जूनियर, दैट्स व्हाई अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ बुक कीपर। ओके, अब सुपरविजन, द बुक कीपर डज नॉट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट बिकॉज bookkeeper is a junior to accountant. Accountant supervise and check the work of the bookkeeper because accountant is a superior or to bookkeeper. Okay, work. Okay sir. The staff involved, work is done by the junior staff of the organization because bookkeeping is a primary stage job of book accounting, so junior staff work does this work throughout the year. Senior staff perform the accounting work. So we can say accounting begins where bookkeeping ends. Okay, accounting begins where bookkeeping ends. We can say accounting begins where bookkeeping ends. Next, branches of accounting. There are many types of branches of accounting, but we consider here. Please mute your mic. Please mute your mic. First one is financial accounting. It is concerned with recording the transaction of financial characters. In financial accounting, we record only transaction of financial characters, summarizing and interpreting them and communicating the result of the users. It ascertain profit earned or loss suffered during a period, usually 1 year as accounting year, and the financial position as on the date when the accounting period ends. It can provide financial information required by the management and other parties. The word accounting and financial accounting are used interchangeably.
So we can use accounting and financial accounting words interchangeably. At present, we are concerned with financial accounting only, but in the present time, we concern financial accounting in place of accounting, because in the recent time we have three accounting branches. First one is financial accounting, second one is the cost accounting, and third one is management accounting. Now comes to the second accounting method. This is called cost accounting. It analyze the expenditure as to ascertain the cost of various products manufactured by the firm and fix the price. It also help in controlling the cost and providing necessary costing information to management for decision making. अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ी ऊपर. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या बताया आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स ओनली. लेकिन अब जब आप देख रहे हैं कि हमारा स्कोप जो बिजनेस का है वो बढ़ रहा है, जो अकाउंटिंग का स्कोप है वो भी एक्सपेंड करेगा इसके कारण, तो अकाउंटिंग एक नई ब्रांच हमारे पास आई, उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उसकी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सकें. ठीक है, इसके मेथड को जो हम इसमें करते हैं यूज, इसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग के टेक्निक को यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. is concerned with generating information related to funds, cost and profits, etc. This enables the management in decision making. Basically it is meant to assist the management in taking rational policy decisions and to evaluate the impact of its decision and action and the performance of various departments. ठीक है, तो these are the three methods of accounting. First one is financial accounting, which concerned with the nature of financial characters of the business. Second one is cost accounting, which concern the cost of various products and services. And third one is management accounting, which concern regarding information about fund, cost and profit, etc. for the decision making, policy and action of the management. Okay, so these are the three branches of accounting. Now comes to the objective of financial accounting. The main objective of financial accounting are as under. First one is finding out various balances, systematic records or recording of business transactions, provided vital information about various balances like cash balance and bank balance. If we want to know how much cash we have in a particular date, how much cash we have in bank in a particular days, we can check our accounts and know the amount easily. Providing knowledge of transactions, systematic maintenance of books, provided the deals of every transaction. If we maintain books systematically, we can easily check the detail of any transaction at any time. Ascertain the net profit or loss. Summation in form of profit and loss provides business income over a period of time. If we want to know how much profit we have in a particular accounting year, then we can check our accounting records to know the said amount or the required detail of regarding profit and loss earned by the financial firm in the financial year. Despiting financial position, balance sheet is prepared to despite financial position of business, means what the business owns and what is owned to others. If we want to know, if we want to know how much asset we have or how much liability we have in a particular date or particular time, we can check our balance sheet. Information to all interested users. After analysis and interpretation, business performance and positions are communicated to interested users. I have already told you what is the procedure. Next one is fulfilling legal obligation. Vital information, accounting information help in fulfilling legal obligation, that is GST, VAT and income tax, etc. How much GST we have to pay to government? How can we know?
How much amount of GST to be paid to government? How can we know? By checking our सर ये तो जब हमारा बजट डिक्लेयर होता है उसी में डिसाइड हो जाता है ना? नहीं, डिसाइड नहीं होता। आप ये देखिए, बजट तो बेटा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का होगा। अब इस अकाउंटिंग ईयर में आपने जितनी जीएसटी अर्न करी, कितनी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेंगे, जितना वैट आप इनकम गवर्नमेंट को पे करेंगे, कितना इनकम टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? ये आप अपने प्रॉफिट की अर्निंग कैपेसिटी के थ्रू डिसाइड करेंगे, अपने अकाउंट्स के थ्रू डिसाइड करेंगे कि कितनी सेल आपने करी, कितनी जीएसटी आपने कलेक्ट किया, कितना जीएसटी आपने पे किया, क्या अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना है, कितनी इनकम आपने अर्न करी। तो ये हमारे बेटा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पर पता लग सकता है कि हाउ मच द अमाउंट ऑफ द टैक्सेस वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर accounting year or financial year. Okay, so these are the objective of financial accounting. Now comes to the function of accounting. The function of accounting is to provide qualitative information, primary function in nature, about economic activities, entities, which is intended to be useful in making economic decisions. Financial accounting perform the following major functions. First one is maintaining systematic records. Business transactions are properly recorded, classified under appropriate account and summarized into financial statements. In accounting, we maintain a proper records of accounts to record a transaction into appropriate place so that we can check that transaction easily whenever we want. Next one, communicating the financial result. It is used to communicate financial information in respect of net profit or loss, asset, liabilities, etc. to the interested parties. If we want to know how much profit we earn, how much loss we suffer, what is the amount of the asset we have, what is the amount of the liability we have to pay to the other parties, we can check it, the amount, by our accounting books. Meeting legal requirements. The provisions of various laws such as Companies Act 1956, now it's come to Companies Act 2013, income tax and GST, VAT tax, etc. require the submission of the various statements, that is annual accounts, income tax returns, return for GST and VAT, etc. Fixing responsibilities. It help in computing of profit of different department of an enterprise. This facilitate the fixing of the responsibilities of departmental heads. ठीक है? If we want to fix some responsibility of the department, we have to fixing liabilities of the department head first. Decision making. It provides the users the relevant data to enable them make appropriate decision in respect of investment in the capital of the business enterprise or to supply goods or credit or lend money, etc. अब देखिए, अगर कोई डिसीजन मेकिंग हम करना चाहते हैं, या हमारा कोई इन्वेस्टर या कोई सप्लायर ये डिसीजन लेना चाहता है कि हाउ मच अमाउंट वी दैट इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट इन, और हाउ मच अमाउंट द इज safest amount to invest in that business, how can this will be decided? अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? उसके प्रॉफिट और लॉस से सर अकाउंटिंग चेक करिए। और कैसे आप पता लगा सकते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स को तो आप चेक कर ही सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इसमें चेक? कंपनी की बैलेंस। हाँ, कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट को आप जब 2-3 साल में एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज क्या है और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। अगर कंपनी में आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ब्राइट हैं, आपको लगता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने पर आपको रिटर्न प्रॉपर मिलेगा, या अब तक जो कंपनी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है या स्टेक होल्डर्स को दे रही है वो प्रॉपर दे रही है,
तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाएंगे या उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अदरवाइज आप उसमें इन्वेस्ट करके अपने अमाउंट को वहां पर डंप नहीं करना चाहेंगे। तो ये डिसीजन कि कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी में, ठीक है, कितना रिटर्न हमें इस कंपनी से मिल सकता है, एवरेज या एक्सपेक्टेड रिटर्न कंपनी क्या हमें पे करेगी, इसका डिसीजन कहां से लिया जाता है? इसका डिसीजन भी हम अकाउंटिंग की जो रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के, जो अकाउंटिंग उसने मेंटेन किए हैं अपने, उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है। अब नेक्स्ट है बेटा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग से फायदे क्या है? सबसे पहला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजिशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज नोन थ्रू अकाउंटिंग। ठीक है, अभी आपको ऐसे बता भी चुका हूं मैं कि कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है, कितना लॉस हम सफर कर रहे हैं, क्या हमारी एसेट है, क्या हमारी लायबिलिटी है। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस की, उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, टेक डिसीजंस एंड एक्सरसाइज कंट्रोल एंड ऑन अफेयर्स ऑन द बिजनेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेना चाहता है तो किस बेस पे लेगा भाई? वो अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेना चाहता है तो किस बेस पे लेगा? अकाउंटिंग सर, उसका अकाउंटिंग देखते। कैसे बेस पे कर सकते हैं भाई? अकाउंटिंग के बेस पे हम फॉर एग्जांपल कहीं इन्वेस्ट करना है तो पहले अपना अकाउंट चेक करना, अकाउंट देखना होगा कि कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वी आर कैपेबल और नॉट। हाँ, देखिए यही मैं बता रहा हूँ कि जो हमें कोई भी डिसीजन लेते हैं हम, तो उसके पीछे बड़ा एक प्लान वे होता है, और जब हम प्लानिंग करते हैं उसके लिए हमें डेटा चाहिए होते हैं। तो डेटा में कहाँ से प्रोवाइड होंगे? डेटा में प्रोवाइड होंगे अकाउंटिंग से। ठीक है, हम ये देखेंगे किस एरिया में हम स्किलफुल हैं, किस एरिया में हम अपने टारगेट को और बढ़ा सकते हैं, किस एरिया से हमारी इनकम बढ़ सकती है। उसके अकॉर्डिंगली हम बेटा अपने प्लानिंग्स को, अपने डिसीजन मेकिंग को डिसाइड करेंगे और उस एरिया को टारगेट करेंगे ताकि हम मैक्सिमम रिटर्न उस जगह से जो है वो ले सकें। फिर रिप्लेस मेमोरी, a systematic and timely recording of transactions, obviate the necessary to remember the transactions. The accounting records provide his necessary information. अब देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगा, अगर हम सिंगल 2-3 ट्रांजैक्शन दिन में करते हैं तो उसको आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं हम। लेकिन अगर हमारे पास 1000 ट्रांजैक्शन होते हैं रोज, ठीक है, 100 ट्रांजैक्शन होते हैं, मिलियंस ट्रांजैक्शन होते हैं, तो क्या हम उसको मेमोराइज कर सकते हैं? No, sir. अगर एक दिन में आपके पास 150 ट्रांजैक्शन होते हैं तो क्या आप सारे ट्रांजैक्शन को मेमोराइज कर सकते हैं? नहीं सर। और ये भी नहीं पता लगा सकते आपको कितना पैसा किस पर्सन से मिला, कितना पैसा किस पर्सन को देना है, ये कितना बैलेंस किस पर्सन का है, कितना बैलेंस हमें किस पर्सन से लेना है, ये भी बिना सिस्टमैटिक और रिकॉर्डिंग के नहीं डिसाइड कर सकते। यस सर। अकाउंटिंग बेटा में फायदा करती है। ठीक है, इसके लिए अकाउंट्स को ये हेल्प मिलती है कि हम उसके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को जब मेंटेन करते हैं तो हम अपने अकाउंटिंग बुक्स को चेक करके देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर डेट पर किस पर्टिकुलर पर्सन से हमें कितनी अमाउंट को लेना है, या किस पर्टिकुलर पर्सन को कितना अमाउंट हमें पे करना है, या कितना कैश हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट में है, या कितना बैंक बैलेंस हमारा पर्टिकुलर डेट में है, कितनी सैलरी हमने किस मंथ में पे की, कितना वेजेस हमें किस मंथ में पे किया, ठीक है, कितना कमीशन हमें किस मंथ में मिला, या कितना कमीशन में किस मंथ में पे किया। इसको जानने के लिए हम सिस्टमैटिक और टाइमली रिकॉर्डेड अपने ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हैं और आसानी से विद इन अ सेकेंड हम पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट किस रिस्पेक्टिव हेड पे हमने एक्सपेंस किया है, या क्या बैलेंस बचा है, या क्या बैलेंस हमको पे करना है। ओके, तो ये हमारी रिप्लेस कर देता है मेमोरी को। नेक्स्ट, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो भी आपको अकाउंटिंग बहुत हेल्प करेगा। कैसे करेगा भाई? अकाउंट्स हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। ये कैसे पॉसिबल है? सर ये हमें पता चल जाएगा ना कि लास्ट ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ था अगर हम अकाउंटिंग को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे। आप कंपेयर कर सकते हैं, लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड चाहिए। तो अगर पिछली बार आपने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किए,
इस बार आपने रिकॉर्ड मेंटेन किए, तो पिछले बार के रिकॉर्ड से इस बार के रिकॉर्ड को हम कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि हमें कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहां पर हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया और कहां पर हम अच्छा परफॉर्मेंस और कर सकते हैं। तो ये कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। लास्ट ईयर के बेसिस पे और करंट ईयर के बेसिस को जब हम कंपेयर करते हैं तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमको रिसीव होती है। ओके, नेक्स्ट है बेटा फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अभी देखिए जैसे आपको मैं बता रहा था कि हाउ मच इनकम टैक्स वी हैव टू पे द गवर्नमेंट, हाउ मच सेल्स टैक्स, हाउ मच वैट, हाउ मच एक्साइज ड्यूटी वी हैव टू पे टू गवर्नमेंट। इट इज डिसाइडेड बाय द चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स मेंटेन बाय द फर्म। ठीक है, तो आसानी से हम अकाउंट्स मेंटेन करके उसको चेक करके पता लगा सकते हैं कितना अमाउंट इनकम टैक्स का, कितना अमाउंट सेल्स टैक्स का, कितना अमाउंट वैट का, कितना अमाउंट जीएसटी का या अदर ड्यूटी जो हमारे ऊपर इंपोज की गई है गवर्नमेंट से, उसका अमाउंट हमें कितना गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, इसका आसानी से हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स लोन्स। अब लोन के लिए कैसे बेटा फैसिलिटी मिलेगी हमें अकाउंट से? सर क्योंकि बैंक वाले हमें कोई ना कोई एश्योर्ड मनी या कोई हमें उसके बदले में कुछ गारंटी उनको देनी होती है ना। आप देखिए वो उसी बेसिस पे हमें दे सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा टर्नओवर कितना है कंपनी का, तो उसका कितना परसेंटेज हमें लोन मिल सकता है। जब आप किसी पर्सन को लोन देते हैं, अगर आप किसी पर्सन को लोन देते हैं तो क्या चेक करते हैं? वही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी, वो हमें रिटर्न कर पाएगा विद इंटरेस्ट या नहीं। क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करते हैं उसकी? ये लास्ट 3 ईयर सैलरी स्लिप भी चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट 3 मंथ की लास्ट 3 मंथ की लास्ट 3 इयर्स की या लास्ट 3 मंथ्स की या लास्ट 3 इयर्स की जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न होता है इस पर्सन का, ठीक है, उससे आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या इसकी इनकम का ग्रोथनेस है, कितना इसको लोन प्रोवाइड कर सकती है बैंक। लेकिन बेटा कंपनी के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता, कंपनी कोई फिजिकल शेप तो रखती नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगेगी? उसकी बैलेंस शीट से और उसके रिटर्न से। तो उसके बैलेंस शीट को, रिटर्न को चेक करने के बाद ये डिसाइड हो सकता है कि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो साउंड है या नहीं है, वो प्रॉपर रिटर्न हमको पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, टाइमली हमको हमारा लोन वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो लोन हम प्रोवाइड करेंगे उस कंपनी को उसके बदले हमें सिक्योरिटी के लिए क्या क्या उससे मिल सकता है। ये सब देखने के लिए हमें उस कंपनी के अकाउंट जो मेंटेन किए गए हैं उसको चेक करना जरूरी होता है। जो भी लेंडर होगा उस कंपनी का, जो लोन प्रोवाइड करने वाला पर्सन होगा, वो उसकी पोटेंशियल ग्रोथ को और एसेट्स एंड लायबिलिटी को चेक करने के बाद ही सैंक्शन करेगा कि उसको कितना लोन दिया जा सकता है। ओके, तो ये भी हमारी अकाउंटिंग के का ही एक एडवांटेज है कि अगर हमने प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किए अपने, तो हमें लोन लेने में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आसानी रहेगी। नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट। अगर हमने सिस्टमैटिकली अकाउंट अपने मेंटेन किए हैं, ठीक है, तो किसी पार्टी से डिस्प्यूट होने की कंडीशन में हम इन रिकॉर्ड्स को एज ए एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। If someone desire to sell his business, the accounts maintained by him will enable the ascertainment of the proper purchase price. अगर मान लीजिए कोई पर्सन अपने बिजनेस को सेल करना चाहता है, तो उस बिजनेस की प्रॉपर प्राइस क्या होगी, ये कैसे डिसाइड होगा? ये भी उसके जो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किए गए हैं उनको चेक करने के बाद डिसाइड हो सकता है कि कंपनी का एक प्रॉपर सेलिंग प्राइस क्या होगा। जो वेंडर उस कंपनी को परचेज कर रहा है वो अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का पे करके उस कंपनी को परचेज कर सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को परचेज कर सकता है। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होती है मालूम आपको? व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? दिवालियापन। क्या होता है दिवालियापन, किसे कहते हैं मालूम है? When a company has no assets and no capital, then he may declare itself that it has become insolvent. हाँ, when any person have a liability less more than his asset, when a person have liabilities more than his asset is known as insolvent. तो ऐसे ही कंपनी के केस में भी होता है। अगर कंपनी की लायबिलिटीज ज्यादा हो जाए और
या बिजनेस की लायबिलिटीज ज्यादा हो जाए और उसकी एसेट कम हो जाए तो कंपनी को हमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना पड़ता है, या बिजनेस को हमारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना पड़ता है। इसके लिए भी हमें अपना, अब ये तो ऐसा है नहीं कि बेटा अपने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लेंगे। डिक्लेयर कौन करेगा इंसॉल्वेंट? हमको कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो कोर्ट में भी हमको अपने पास्ट ईयर्स के जो अपने अकाउंट्स हैं वो प्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो जब हम अकाउंट को प्रेजेंट करेंगे उनके बेस पे चेकिंग करने के बाद जब कोर्ट ये सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ इनकी लायबिलिटी इनके एसेट से ज्यादा है, तो हमको हमारी बिजनेस को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकता है। नेक्स्ट है बेटा हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब देखिए कोई पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, या फर्म डिसॉल्व होती है, तो उस केस में भी जो हमारे अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर और रोल प्ले करते हैं कि हमें किस पार्टनर को कितना पेमेंट करना है, किस पार्टनर से कितना पेमेंट लेना है। ठीक है, और फाइनल पेमेंट पार्टनर्स के बीच में क्या होगा। तो ये हमारे अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हैं जिनके थ्रू हम अपनी बिजनेस को प्रॉपरली और स्मूथली रन कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें कोई डिस्कस करना है किसी को पॉइंट? तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए अकाउंटिंग जो है बेटा अपने आप में फुल फ्लेज मेथड नहीं है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है वो देखिए। सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। नॉन मॉनिटरी इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस आर नॉट कंप्लीटली ओमिटेड, आर कंप्लीटली ओमिटेड। देखिए अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, केवल मॉनिटरी जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। जो नॉन मॉनिटरी इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको कंप्लीटली ओमिटेड कर देते हैं, जबकि इसका भी एक प्रॉपर प्लेस होता है हमारे बिजनेस में। जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल दिया अपने एम्प्लॉइज का। अगर हमारे एम्प्लॉइज लॉयल और ऑनेस्ट हैं तो ये हमारे लिए एसेट है हमारे बिजनेस की, लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि नॉन मॉनिटरी इवेंट्स को या ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब देखिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारी एसेट की कॉस्ट दिखाई जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है मालूम है आपको? इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। नो सर। द कॉस्ट ऑफ द transaction the cost of the asset at the time of its purchase is known as historical cost। संपत्ति को खरीदते समय जो उसकी कीमत थी उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी रेट पे एंटर करते हैं, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने आज से 10 साल पहले एक लैंड परचेज की, तब उसकी कीमत 5 लाख रुपए थी मान लीजिए, लेकिन अपनी बुक्स में अगर आप एंटर करेंगे तो आज की बुक में भी 5 लाख की एंट्री दिखा रहा होगा। म्यूट कीजिए भाई अपने आप को, माइक म्यूट कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आएगी। आज से अगर आपने 5 साल पहले या 10 साल पहले एसेट परचेज की, उसकी कीमत 5 लाख रुपए थी, अपनी बुक्स में आप उसको 5 लाख रुपए का एंटर करेंगे और आपकी जो बुक्स आप दिखा रही होगी वो 5 लाख रुपए की कीमत दिखा रही होगी। तो क्या आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जो एसेट हमने परचेज की थी उसकी कीमत आज भी 5 ही लाख रुपए होगी? नो सर। नो सर। वैल्यू बढ़ गई होगी, लेकिन उसकी हम करंट वैल्यू नहीं दिखाएंगे, हम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाएंगे। वही ये देखिए आपको दिखा रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं ये कि फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स records at original cost, actual amount spent on the asset like building, machinery plus all incremental charges is recorded. In this way effect of the rise of the price is not taken into a consideration. As a result सर लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम लोग डेप्रिसिएशन भी तो डालते हैं, मतलब चीजें अप्रिशिएट भी होती हैं डेप्रिशिएट भी होती हैं, तो वो भी तो फाइनेंशियल अप्रिशिएट होती कहाँ है भाई? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन वैसे भी नहीं लगेगा। लैंड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। आज से अगर 10 साल पहले मैंने लैंड परचेज की 10 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की, और आज से 10 साल बाद उसकी कीमत 10 लाख रुपए ही अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। उसकी ओरिजिनल कीमत अपनी बैलेंस शीट में हम शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अकाउंट की लिमिटेशन है कि हम जो अकाउंट्स में अपनी एसेट को शो करेंगे वो उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करेंगे, ना कि उसके करंट प्राइस पे। ओके ओके।
इसके बाद है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन is sometime is biased on estimation. Estimates are often inaccurate. For example, it is not possible to predict the actual life of an asset for the purpose of depreciation. अभी देखिए कुछ assets ऐसी होती हैं जिन पर हम एक estimation के अकॉर्डिंगली depreciation चार्ज करते हैं. जिसे मान लीजिए मैंने मशीनरी परचेज की हो, मैंने उसको मान लिया कि ये जो है 10 साल तक प्रॉपर वर्क करेगी, तो अब ये कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि 10 साल ही वो प्रॉपर वर्क करेगी? ये तो हमारा एस्टिमेशन है, हो सकता है उससे पहले भी खराब हो जाए, या उसकी जो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए वो ऑब्सोल्यूट हो जाए, हमारी टेक्नोलॉजी आउट ऑफ मार्केट हो जाए, आउट ऑफ यूज हो जाए. हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? तो यहां पर भी एक एस्टिमेशन होता है, तो एस्टिमेशन के कारण भी हमारी जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकती है. इसकी लिमिटेशन है ये, ठीक है, कि जो हमारा एस्टिमेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी यूज एज द ओनली सेट ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस ऑफ द बेसिस ऑफ मेयर प्रॉफिट. हम केवल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ही बिजनेस मैनेजरियल परफॉर्मेंस के लिए जो है एक फुल प्रूफ बेस नहीं मान सकते. ठीक है, मान लीजिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ 1 year कैन readily be manipulated by omitting certain expenses. भाई मान लीजिए मैं एक्सपेंडिचर करता हूँ एडवर्टीजमेंट पे, उसको रिकॉर्ड नहीं करता बुक्स ऑफ अकाउंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंसेस करता हूँ, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं करता, तो हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ जाएगा. डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करता, उसका ऑलरेडी प्रॉफिट बढ़ जाएगा. इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन केवल एक फुल प्रूफ मेथड नहीं है हमारे मैनेजरियल परफॉर्मेंस को चेक करने का, या प्रॉफिट हमारा एक फुल प्रूफ मेथड नहीं है हमारे मैनेजरियल परफॉर्मेंस को चेक करने का. और लास्ट है इसमें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट न्यूट्रल और अनबाइज्ड. ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी, ये हमेशा न्यूट्रल और बाइज्ड अनबाइज्ड नहीं होती हैं. कभी कभी इस पे हमारे कुछ अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो अभी आप लोग इतना ही करेंगे आज की क्लास में. तो आपको मैंने इसमें एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, फंक्शंस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस, इतना मैंने आपको बता दिया. लगभग आपकी यूनिट 1 का इतना ही मैटर इसमें होगा. बाकी टर्मिनोलॉजी है, मैं इसको भी शेयर कर दूंगा, जो ये स्लाइड है आपके ग्रुप में, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं इसके आगे. ठीक है, ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सर.